हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ क्लास 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ एग्जाम जो होएगा 1.5 घंटे ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ 35 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 21 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਏਗਾ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ मतलब कि 1 वर्ड क्वेश्चन या 1 लाइन क्वेश्चनस होणगे। नैक्सट 14 to 17 ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ 18 to 20 ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ 21st ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 3 ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ CBSE ਟੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਮਾਸ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਔਨ ਅ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਦਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਨੇਮ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵੈਦਰ ਅ ਪਲੈਨਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਔਰ ਨੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। Number 1, the value of acceleration due to gravity on the planet. Number 2 is surface temperature of the planet. So 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ acceleration due to gravity ਮਤਲਬ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, where does a body weigh more at the surface of earth or in a mine? ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫੌਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਅ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਓਨ PDF ਫਾਈਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ ਵੇਜ ਮੋਰ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਵੇਜ ਮੋਰ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਡੈਫਥ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਫਥ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਆ ਪੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਵਟ ਆਰ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮੋਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਅਰ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ no need to drive the dimension formula. You can write just
डायरैक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर लिख सकते हैं ml-1 t-1। नेक्स्ट आ डिफाइन मोलर स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी, इट्स SI यूनिट एंड डिमेंशन फॉर्मूला। सो बच्चे जिहड़ा CPCV है, जो ये आर्टिकल करवाया गया सी उदों भी स्पैशल दसिया गया सी आर्टिकल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो डेफिनेशनस आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बच्चे वो जो SI यूनिट पूछा गया तो डिमेंशन फॉर्मूला, सो आई थिंक बच्चे इनू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होएगी क्योंकि आर्टिकल के विचों ही शॉर्ट क्वेश्चन बनया। नैक्सट है डिफाइन थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी की है, SI यूनिट्स की है एंड डिमेंशन फॉर्मूलाज। सो बच्चे ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सो ये भी तुसी पढ़ सकते हैं। स्टेट राइट स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स। बच्चे थर्मोडायनमिक्स से बेसिकली जड़े आ दो लॉज आ, फर्स्ट लॉ एंड सैकेंड लॉ, दैन बच्चे सेल्सियस लॉ, स्टेटमेंट एक्सैक्ट्रा। सो ये जड़ियाँ स्टेटमेंट्स आ बहुत केयरफुली पढ़ के जाना बिकॉज दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस, क्योंकि बच्चे सैंपल पेपर तो ही जड़ा है थोड़े स्कूल टीचर्स पेपर बना सकते हैं। सो ट्राई करो कि जड़ियाँ डेफिनेशनस आ थर्मोडायनमिक्स दियाँ वो सारियाँ बहुत अच्छी तरह ना थोड़े टिप्स के उपर होनियां चाहिए आ। नैक्सट आ आउट ऑफ 3 क्वांटिटीज़ इन अ थर्मोडायनमिक्स। बच्चे 3 क्वांटिटीज़ केड़ियां आ, DQ DU DW, विच वन डिपेंड ऑन पाथ, पाथ ती केड़ी डिपेंड कर दिया। स्टेट फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन टू रीच द स्पैसिफिक वैल्यू, सो जड़ी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। नैक्सट आ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच आइसोथर्मल एंड आइसो एडियाबैटिक प्रोसैस। बच्चे आर्टिकल लॉन्ग आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल्स पूछिया गई, तुसी कोई भी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा गिव वन एग्जाम्पल, मतलब कि 1.5 मार्क्स की होएगी आइसोथर्मल और 1.5 मार्क्स की होएगी एडियाबैटिक की। नैक्सट आ ओनली राइट द एक्सप्रैशन ऑफ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस के द्वारा बच्चे जो प्रेशर है दैट इज़ P इज इक्वल्स टू 1/3 रो V स्केयर, ठीक है जी। सिर्फ उन्होंने एक्सप्रैशन लिखने लिए क्या, उन्होंने कहा विदाउट डेरीवेशन, मतलब सानू डेरीवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सो असी रिजल्ट जोड़ा है लिख दिता। नैक्सट बच्चे एदा ही सेम डिटो न्यूमैरिकल आया होया, उन्होंने कहा इफ डेंसिटी ऑफ रो इज़ 1.3, बच्चे असी हुणे प्रेशर लिख के हटे हैं P के इक्वल है 1/3 रो V स्केयर, V की जगह पर बच्चे तुसी C स्केयर V लिख सकते हैं। सो कुछ बुक्स ने जड़ा आ रूट मीन स्क्योर स्पीड नू V दे नाल लिखा होया, किसी ने C दे नाल लिखा होया। हुण तुहाडे पेपर दे विच बच्चे मैंशन आ कि C दे नाल ही लिखना आ। सैकेंड क्वेश्चन है जो उन्होंने बच्चे तुहानू वैल्यू दे रखी, रो की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ गैस, मतलब तुसी P पता करना, मतलब ऊपर वाला जो फॉर्मूला आ सो ओही बच्चे नैक्सट न्यूमैरिकल आया, जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो, जोड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो बच्चे वैल्यूज़ पुट करनियाँ स्टार्ट कर दियाँ। P इज़ इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय रो की वैल्यू कितनी है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 400 × 400 C स्केयर सी बच्चे। सो आ गया। सो सारी टर्म नू बच्चे सॉल्व करके देख लो, थोड़ा आंसर आएगा 6933.3, ठीक है। सो अगर बच्चे इनू इत्थे तक भी छड्ड के आओगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तां भी ठीक है, अगर तुसीं इनू पॉइंट्स दे विच शिफ्ट करना चाहते, सो पॉइंट कितने शिफ्ट करांगे 1 2 3 4, सो आ गया 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। बच्चे जदों असीं जीरोज़ नीचे लिखते हैं, ठीक है, असीं की कीता जड़ियाँ जीरोज़ आओ शिफ्ट करांगे, सो इत्थे आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि असीं पॉइंट्स जड़े आ शिफ्ट कीते आ। डन। नैक्सट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक एंड सो बच्चे जी सब तो पहला तुसी डेफिनेशन लिखोगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सिर्फ 1 मार्क्स का आया, सिर्फ बच्चे डेफिनेशन लिख के तुसी एग्जाम्पल लिख दोगे बिकॉज ये बच्चे असी ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेनेशन यदि पढ़ चुके हैं, डिटेल दे विच पढ़ चुके हैं। सो तुसी एक बार देख लेना। नैक्सट व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, ये भी बच्चे बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आई हुई है, सो तुसी देख सकते हैं। नैक्सट द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मैटर A एंड B आर शोन इन अ फिगर। सानू 2 फिगर्स बच्चे गिवन है अलग अलग, उन्होंने क्या विच ऑफ द मैटर हैज़ द ग्रेटेस्ट यंग्स मॉडलस, दोनों के विचों बच्चे यंग्स मॉडलस किहदा ज़्यादा आ। सो A दी और B दे विच बच्चे ध्यान नाल ग्राफ देख लो, उन्होंने कहा यंग्स मॉडलस किहदा ज़्यादा होएगा। मैटर A हैज़ अ ग्रेटर यंग्स मॉडलस बिकॉज द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ अ ग्रेटर दैन मटीरियल A, क्योंकि ए दे नालों बच्चे उहदा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ तुसी बी दे विच देख सकते हैं कि आह वाली लाइन जिहड़ी आ वो थोड़ी ज़्यादा आ। अगर ज़्यादा आ तो असीं की कहांगे कि जिहड़ा यंग्स मॉडलस आ वो ए दा की होएगा ग्रेटर होएगा। सो नैक्सट देखो उन्होंने कहा विच ऑफ द टू इज़ द
ਸਟਰੋਂਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਰਵ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟਰੋਂਗਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਬਟ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, रूट मीन स्क्वेयर ते मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड राइट दैम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सब तो पहला तो बच्चे थानू एक्सप्रैशन पता होनी चाहिए रूट मीन एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का लिख दिता। बच्चों बच्चे ध्यान ना देखो ये भी आर एम टी आ रहा, आर टी एम आ रहा, आर टी एम आ रहा, मतलब कि आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर एम एस बच्चे रेशो के मैं इस करके लिख लिया ताकि देख सकां भी किहड़ी टर्म जिहड़ी आ किद्दां दा आंसर आ रहा। इसदा मतलब रूट मीन का आंसर कितना आ गया? √3। ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया? आर टी एम बच्चे कैंसल आउट हो गया 8/π और ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया? √2। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। √3 ਦਾ ਆंसर कितना आएगा? 1.73। कितना आंसर आएगा? 1.73 और वी एवरेज का जोड़ा 8/√8/π का आंसर आएगा 0.900 और ਇਹਦਾ आंसर कितना आएगा? 1.414। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? 1.73। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ रूट मीन स्क्वेयर ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਆ? 1.44। MP मतलब कि ਅਸੀਂ MP ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ठीक है। सो बच्चे आ टर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सानू वैल्यू लिखने के लिए क्या आया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब सब तो वड्डा, उस तो छोटा, उस तो छोटा, उस तो छोटा। नैक्सट आ हाउ न्यूटन्स अराइव टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस यूजिंग द फॉर्मूला। बच्चे आ सानू फॉर्मूला गिवन है, उन्होंने क्या ये जोड़ा आ वट इज़ द एरर इन इट, ਇਹਦਾ मतलब गलत लिखा होया तो सही फॉर्मूला किया। बच्चे जो सही फॉर्मूला है दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। सो ये सही फॉर्मूला है। फर्स्ट आंसर हो गया। कहते गिवन है डेंसिटी भी गिवन है, सानू प्रेशर भी गिवन है। सो जस्ट वैल्यूज पुट करो, ठीक है। प्रेशर और रो दियाँ सानू वैल्यूज गिवन है, सो उन्होंने सॉल्व करो जोड़ा थोड़ा आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ हाउ लैपलेस करेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ साउंड। सो बच्चे उन्होंने लैपलेस ने जोड़ा आ थोड़ा जिहा उहनूं मॉडिफाई किया सी। मॉडिफाई करके उन्होंने की किया प्रेशर के नाल जिहड़ी गामा टर्म आ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ v = √P/ρ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ बच्चे नैक्सट 3 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। स्टेट कैपलर्स लॉ इतने काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मैम फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ, थर्ड लॉ केड़ा करना। बच्चे प्लैनेटरी मोशन मतलब कैपलर्स के तीन लॉज जोड़े तुसीं इत्थे स्टेट करनी आ, लिखने आ, लिख के बच्चे डायग्राम्स ड्रॉ करनी आ। डायग्राम्स के नाल अगर वह हल्का फुल्का मैथमैटिकल पोर्शन आ तो तुसीं वो भी नाल लिख के आओगे। नैक्सट आ अज्यूम द अर्थ टू बी सफेयर। धरती जी है साडी गोल आ, उहदी मास डेंसिटी आ। हाउ मच वुड बी द बॉडी वेज हाफ वे डाउन। अगर असी जड़ा वेट आ उन्होंने हाफ वे डाउन कर दिए तो कहते किद्दां दी जड़ी उहदा वेज होएगा 290 न्यूटन ऑन द सर्फेस दे उपर। सानू बच्चे वेज गिवन आ, वेज का वेट मतलब मास इंटू ग्रेविटी, mg कितना गिवन है 250। जदों असी धरती के अंदर जाते हैं तो साडा जिहड़ा आर्टिकल के अकॉर्डिंगली बच्चे आंसर कितना आंदा आ g' = g 1 - d/r। सो d/r की जगह तो असी की पुट करना हाफ, क्योंकि उन्होंने क्या हाफ हो गया। अगर असी हाफ पुट करते तो g' का इत्थों सानू आंसर आ गया g/2। क्लीयर हो गया। सो इनू बच्चे मेन फॉर्मूले जो असी हाफ वे डाउन करांगे तो w' कितना आ जाएगा mg' g' का आंसर असी हुणे सॉल्व किया g/2। सो पुट किया और साडा सिंपल आंसर आ गया। नैक्सट आ ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द वर्क डन एंड एडियाबैटिक प्रोसैस। सो बच्चे वर्क डन का तुसी एडियाबैटिक प्रोसैस सिंपल आर्टिकल है
मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तुसी सिंपल ड्राइव करना। नैक्सट है एन इलैक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 500 वाट इफ system prefer work at the rate of 100 joule per second, at what rate the internal energy increases। so बच्चे सानू Q given है, W given है, so बच्चे सानू W given है और Q given है। सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स Q के इक्वल आएगा U प्लस W। सो असी बच्चे U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो U इसी तरफ रह जाएगा और W दूसरी तरफ जाएगा। सो कितना आ जाएगा Q माइनस W। सो Q की वैल्यू बच्चे कितनी है 500 तो W की 100। सो 500 चो बच्चे 100 माइनस किया साढ़े को कितना आ गया 400 जूल पर सेकेंड। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। लास्ट विच बच्चे तुसी लाइन लिखनी नहीं भूलनी कि इनक्रीज हुई है किस रेट पर हुई है एक्सैक्ट्रा। दैन नैक्सट आ जाओ बच्चे सिंपल पेंडुलम का जो एक्सप्रैशन आ उन्होंने क्या टाइम पीरियड के नाल सॉल्व करो। सिंपल आर्टिकल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नैक्सट वट आर द अनडैम्ड और डैम्ड ऑसिलेशन, उन्होंने एग्जाम्पल्स देनिया। इसका मतलब तुसी डेफिनेशन दोगे, डायग्राम बनाओगे, दैन वो एग्जाम्पल जी आ वो लिखोगे। नैक्सट आ रहा जे एक्सैस प्रैशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप एंड सोप बबल। इसका मतलब जोड़े तुसी बच्चे दो आर्टिकल्स लिखने आ, एक ड्रॉप बबल वाला करना, एक सोप बबल वाला करना। ड्रॉप वाला बच्चे थानू मेरी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, सोप बबल मैं नहीं करवाया ऑनलाइन, सो ये थानू मेरे यूट्यूब चैनल के उपर नहीं मिलेगा। नैक्सट आ जाओ डिफाइन सरफेस टेंशन कैपिलरी। सो ये बच्चे छोटिया छोटिया डेफिनेशंस आ। नैक्सट आ ड्राइव एक्सप्रैशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। मतलब एशियन फॉर्मूला है बच्चे असी रिसेंटली करके हटे हाँ 10 दिन पहला। सो वो वाला आर्टिकल जोड़ा है तुसी ड्राइव करना है। बहुत सिंपल जो और सिंपल जो आर्टिकल है राजे, ईजी जो आर्टिकल है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे जो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन जोड़े आ CBSE पैटर्न के नाल टच विच आ। अदरवाइज बच्चे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर है। सो अच्छे तरीके ना प्रिपेयर करके जाना। प्री बोर्ड के बच्चे हो सकता थानू एज सच कोई पेपर जड़ा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड एज वेल एज योर फाइनल पेपर। थैंक यू सो मच। सो जाते जाते बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना ना भूलना।